Good afternoon. Welcome to Mom Talk Friday today. I couldn't come online yesterday because I had mommy duties to attend. तो मैंने कहा कि let's not miss the live and मैंने इसको Friday को shift कर लिया. So I don't know how many of you will be able to join. ऊपर से आज is Valentine's Day. So happy Valentine's Day to all of you. Everybody who is celebrating it. And very honestly, before I start, I was thinking on Tuesday, I'm like, yeah, the topic I want to do is triggers and it's falling on a Valentine's Day. Should I even do it or not? But then because I always wants to keep my promises, so I said नहीं कर लेते हैं. Promise किया last time कि I will do triggers. So Valentine's Day हो ना हो, let's talk about triggers. क्योंकि काफ़ी लोग Valentine's Day पे भी ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड ने विश नहीं किया, वाइफ ने विश नहीं किया. बट या so today topic is about triggers. Okay, now triggers का topic is very काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला है because one thing that I keep seeing mothers telling me is that we want to be a calm parent more than the child. A mother always say I want to be a calm parent. Hi everybody. तो आज मैं थोड़ा ना जल्दी जाऊँगी क्योंकि मेरे को exactly at 1:30 I have to close. Again, have to rush to Zarawa's school. So, but I do want to cover this topic of triggers. So, are you ready to talk about triggers? Give me a thumbs up. And happy Valentine's Day to all of you. And hi Kamya, I saw that you have joined and I'm so happy that you have. Okay, let's talk about parenting triggers. What is a trigger? मतलब आपने काफ़ी बार सुना होगा and because you're here that means that you do want to grow as a parent, right? नहीं तो why will you on a Friday afternoon क्यों आप लाइव सुनोगे मेरा? Because you want to change, because you want to do better for your child, इसलिए आप इधर हो, correct? So आपने ये बहुत सुना होगा कि आप ट्रिगर किस चीज़ से होते हो, आइडेंटिफाइड. आपको पता है, आपको मालूम है कि आपको क्या इरिटेट करता है, आइडेंटिफाइड. बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो एक्चुअली उनको क्या ट्रिगर करता है. ओके, सो बिफोर वी जंप इन लेट्स अंडरस्टैंड ट्रिगर. ओके, मैं जैसे लाइव कर रही थी ना, आई वाज थिंकिंग व्हाट टू से, समथिंग केम इन माय माइंड एंड आई सेड आई विल शेयर दिस एग्जांपल विद यू. ओके, मैंने लाइव के स्टार्टिंग में क्या बोला आपको कि ट्यूसडे को when I was thinking that I'll do the live on Friday, I thought I'm talking about triggers, but it's a Valentine Day. But I wanted to keep my promise, so I said no, we'll go ahead with it. And if you have been following for me for a long time, आपको पता होगा कि when I say something, if it's a promise, for me the value of it is very high. Okay, now imagine जो दूसरा इंसान है, or if my child doesn't value promises or doesn't keep the promises, do you think it will trigger me or not? Tell me. If I am someone who really values who really values commitments, who really values promises, and if my child does not value commitments, does not value promises, don't learn to keep promises, do you think it will trigger me or not? Or even my husband for that matter, if they don't keep their promise, do you think it will trigger me or not? Let me know, then I'll go ahead. Do you think it will trigger me or not? Today I'll not be taking any questions. Today we'll just do triggers, and if I have 10 minutes, then we'll quickly do a question Q&A. Yes, it will. Yes, it will. It will, because it's a behavior, it's a value जो मैं बहुत high end पे रखती हूँ. Okay, so वो trigger. अब मुझे एक बात बताओ. अब मेरा husband है, ठीक है, वो उसके लिए ठीक है यार, मैंने प्रॉमिस किया बट समथिंग केम अप, आई विल नॉट डू इट, और इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, बट मेरे लिए कीपिंग अ प्रॉमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इज इट हिज फॉल्ट और इज इट समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम एंड समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ? लाइक फॉर एग्जाम्पल कि क्या वो मेरे कंट्रोल में है कि उसके कंट्रोल में है? इज इट अबाउट हिम और इज इट अबाउट मी? Him not keeping the promise,
Is it about him or is it about me? Because it is triggering me. It is about me because it holds a very high position in my life. That value holds a very high position in my life. इसके लिए it will trigger me and it will irritate me. You know, that is what triggers really mean. In short, expectations is separate and trigger is separate. Yes, I am expecting my husband to keep his promise. That is an expectation. Okay, but my husband is not keeping that like for example, I can expect my husband to give me a rose, right? But he doesn't give me a rose and that doesn't trigger me because it is not high on my value. I expect my husband to wish me on Valentine's Day, but he didn't wish me. But it didn't trigger me. I'm like, हाँ ठीक है, भूल गया होगा यार, because it's not high on my value. मतलब मेरे लिए it's not very important, you know. लेकिन him not keeping a promise, क्योंकि that is very high for me, that is something जो मेरे अंदर like कूट के भरा हुआ है, will trigger me. So there's a difference about expectation and there's something different about triggers. ट्रिगर में आप इरिटेट हो जाते हो, like literally इरिटेट हो जाते हो. एक्सपेक्टेशन में you get disappointed. You see the difference? Expectation will be disappointment. That I'm disappointed this happened. Trigger is कि यार ये कैसे नहीं करा, you know, like you literally will start feeling that, you know, there's some kind of a volcano that is going to come out now. Because you're like कि how is it कि नहीं हुआ? Am I making sense? Then I'll go into parenting bit of triggers. Okay? Am I making sense? Did you understand the difference between expectation and triggers? Expectation में I'll get definitely disappointed that my husband didn't wish me on Valentine's Day or did not give me a rose. But trigger, if he is not keeping his promise, which is very important for me to as a human, I'll definitely get triggered. Okay? Cool. सो ट्रिगर देखो, आज तो मैं एकदम पढ़ाई लिखाई करके आई हूँ, नोट्स वोट बना के आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ना आप बात करते करते सच्ची में बहुत बार भूल जाती हूँ जो बोलना होता है. तो मैंने कहा नहीं, इस बार भाई अच्छे से लिख के जाएंगे, अदरवाइज आई विल फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स समटाइम्स, क्योंकि मैं बात करने में बहुत मस्त हो जाती हूँ. ठीक है. एनीवे, सो कमिंग बैक टू ट्रिगर्स. क्या होते हैं ट्रिगर्स? इज ऑल अबाउट, इट कैन बी स्पेसिफिक टू अ सिचुएशन, इट कैन बी स्पेसिफिक टू अ बिहेवियर, एंड इट कैन बी स्पेसिफिक टू एन इमोशन. Okay, when it comes to children. Now when I say specific to a situation, okay, situation can be like when your child is hitting, when your child is not listening to you. Okay, behavior can be again, मतलब आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, tantrum throw कर रहा है. ठीक है, it triggers you. Dr. Becky, I don't know if you follow her or not, she wrote a book called as Good Inside, as a parenting book, good book, decent book. And उसमें she identified triggers very nicely. Okay, she said triggers is something from the past. Okay, it is the past experience that or emotions that is interfering in my present. Okay, like जो मैंने अभी आपको ये बोला about keeping your, जैसे for me keeping my promise is very important. Do you think I was born like this? I was not born. When you're a kid, you don't have belief systems on you, right? You don't come up with specific ideas in the world, right? So somewhere down the line, I made a belief system in my past somewhere that keeping a promise is the topmost priority, right? So it is my past emotions, it is my past experiences, it is my past beliefs जो अभी मेरे प्रेजेंट में आ रहे हैं. Okay, now let me start with the parenting point of view. Now another example, I can only give you my example so that you understand how it is. One trigger point for me as a mother has always been scribbling on the walls. How many of you get irritated if your child scribbles on the wall? Type yes. How many of you don't care? मतलब बच्चे ने कर दिया स्क्रिबल तो कर लिया यार, बच्चा है उसमें क्या हो गया, यू नो, लाइक यू रियली डोंट केयर इफ यूर, अरे वाह आज मेरे पति देव ने मेरा लाइव ज्वाइन करा है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम श्योर ही मस्ट बी ब्लशिंग. एनीवेज, सो हाउ मेनी ऑफ यू गेट्स ट्रिगर इफ द चाइल्ड scribbles on the wall? Type yes. And how many of you really like, ठीक है यार बच्चे हैं, let them scribble, what's the big deal about it? Say no. Okay. Okay.
So abhi tak we have 2 yes and 1 person has said no. Okay, now there is nothing right and wrong here. Okay, this is all our conditioning. I get super triggered. मतलब मेरा बच्चा अगर पेन लेके जब when he used to be 1.5 2 no and 1 year जब बच्चे actually start going walking you know, मैं लिटरली पीछे पीछे घूमती थी कि भाई इसे कहीं मार्क ना कर दे, बिकॉज आई नो दैट इफ ही स्क्रिबल्स आई विल लाइक रियली ब्लास्ट ऑफ. दैट इज माई ट्रिगर. वाई डू यू थिंक दैट ट्रिगर केम? बिकॉज वेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड मैंने बोला यार ये मुझे इतना इरिटेट क्यों करता है. एंड माई मदर यूज्ड टू बी लाइक कोई बात नहीं यार, बच्चे व्हाइट वॉश करा लेना फिर से, व्हाट्स द बिग डील, यू नो, लेट द चाइल्ड प्ले. दैट इज माई मदर्स फिलोसफी. Okay, let the child be, it's okay. And I'm like, then why am I getting so irritated? And मेरा husband also gets very irritated if there is a scratch on the wall. हमारे घर में कहीं नहीं है scratch because it really triggers both of us. Okay, and then मैंने कहा but इसका solution चीखना चिल्लाना तो है नहीं. इसका solution ये तो नहीं है that I don't let my child, I stop my child from exploring. Okay, so what is the solution? Why am I getting so triggered about it? First step I did was I understood why it was my past experience coming in. Because I was raised in a family, I am from a defense background, my dad was in Air Force, he was very strict about it. No scribbling on the walls, I very clearly remembered. If you're scribbling, that means you have not disciplined your child well. That is the mentality that we had, okay? So if my child would scribble, it's not that I cannot do the whitewash again. It means I am not disciplining my child. You understand? बच्चे का रिएक्शन से ज्यादा इट इज मोर अबाउट व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट दैट रिएक्शन, और उसकी वजह से मेरे में ट्रिगर होता है, उसकी वजह से आई रिएक्ट, उसकी वजह से थिंग्स हैपन. आई ऑलवेज से अ चाइल्ड इज ओनली डूइंग एन एक्टिविटी और इज लाइक एक्शन कर रहा है. हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स दैट एक्शन is all about our belief systems कि हमने क्या सोचा उस एक्शन के बारे में. ओके ना, यहाँ पे काफी लोगों ने लिखा कि आई डोंट केयर इफ माई चाइल्ड scribbles on the wall. Lot of you wrote I care, it irritates you. Now tell me why two people have different things. If scribbling on wall is wrong, okay, then why different people have different philosophies about it? Because it is how when we were children we were taught. It is the beliefs that we have taken care, like what we have said to ourselves, this is right, this is wrong. Okay, और जब हमारा बच्चा वो चीज करने जाता है, our first instinct is, my first instinct ये होता है कि नहीं ये नहीं करना है, this is wrong, because I was taught like that. Okay, यहाँ तक सबको समझ में आया व्हाट इज अ ट्रिगर? सब पूछना है ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर ये होता है कि बच्चा कोई एक्शन कर रहा है बट वो उससे मैं इरिटेट हो रही हूँ. ओके, बच्चे के टैंट्रम से हम बहुत इरिटेट होते हैं, बहुत बार बहुत इरिटेट होते हैं. ओके, क्यों इरिटेट होते हैं हम टैंट्रम से? सच्ची सच्ची बताना, हाँ जितने पेरेंट्स यहाँ पे, जब मॉल में टैंट्रम हो रहा होता है, जब शॉपिंग मॉल में बच्चा जमीन पे लेट जाता है, what comes in your mind? And be honest about it. आप मॉल में हैं एंड बच्चा जमीन पे लेट के रो रहा है अच्छे से, सच्ची बात बताना, what comes in your mind? I'll know who is saying, who is being truthful and who is saying things, because I will also be truthful about it. कि when a child has a tantrum in public, tell me what exactly first thing that comes in your mind. हाय, लोग क्या सोचेंगे? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट. यस, दो आई एम अ पेरेंटिंग एजुकेटर, स्टिल when my child cries in the mall, my first reaction goes like, and then my second reaction is, it's about my child. But it took time, it took lot of understanding. Okay, क्योंकि बच्चे का रोना is an action. My thought is लोग क्या कहेंगे, और वो लोग क्या कहेंगे is a trigger for me because it's about me, है ना. लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, उसके बारे में नहीं.
लोग ये नहीं बोलेंगे कि बच्चा कैसा है, लोग मुझे जज करेंगे एज अ पेरेंट कि मैंने क्या किया एज अ पेरेंट, राइट और रॉन्ग. सो ट्रिगर वहां से आता है और तब हम एकदम रिएक्शन मोड में चले जाते हैं. ओके, नाउ दैट ट्रिगर, नाउ जो दैट ट्रिगर है ना, दैट ट्रिगर इज बिकॉज वी फील जज्ड एज अ पेरेंट. Okay, now when I feel judged as a parent, again what will happen? I will react to my child instead of responding to my child. A child who is in a mall crying, screaming, सब कर रहा है, ये वो मुझे लॉलीपॉप चाहिए, मुझे तो आज ही डोनट खाना है, आप जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं अगर डोनट नहीं मिला तो. मैं क्या बोलूंगी उसको कि नहीं बेटा, नहीं डोनट नहीं खाना. व्हेन आई सी कि एवरीबडी इज लुकिंग एट मी, यू नो व्हाट आई विल डू, ईदर आई विल गिव द चाइल्ड अ डोनट और आई टेल, आई विल ईदर scold the child in front of everybody because it has started becoming about me. I am getting triggered about it, right? हमें, क्योंकि हम एक रिएक्टिव स्टेट में आ गए, हम खुद डिफेंसिव हो गए, लोग क्या सोचेंगे. सो आई एम रिएक्टिंग टू माई चाइल्ड इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू माई चाइल्ड, not thinking from my logical brain ki if my child is down in doing a tantrum, that means my child needs my help regulating that emotion. मतलब कि इसको मैं हिंदी में कैसे बोलूं कि अगर मेरा बच्चा जमीन पे लेट के रो रहा है, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जमीन पे लेट के रो रहा है, हाँ वो जिद कर रहा है, हाँ वो उसका बिहेवियर है, बिहेवियर I don't agree with that behavior, बट इमोशनली ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट. मतलब इमोशनली उसके अंदर इतना कुछ चल रहा है कि एज एन अडल्ट आई हैव टू सपोर्ट, नॉट गिव इन टू जो वो मुझे बोल रहा है, एंड नॉट स्कोल्ड माई चाइल्ड बिकॉज अदर्स आर सीइंग कि मैं क्या कर रही हूँ एज अ पेरेंट. एंड दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग विद आवर ट्रिगर्स. ओके, बिकॉज जब हम ट्रिगर होते हैं हम रिएक्शन मोड में आ जाते हैं. जब हम ट्रिगर होते हैं हम सोचते नहीं है. जब हम ट्रिगर होते हैं इट स्टार्ट बिकमिंग अबाउट अस एज अ पेरेंट. मुझे ये पसंद नहीं है, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, दिस इज हाउ आई एम, हाउ आर यू डिसरेस्पेक्टिंग मी. इट बिकम्स वेरी वेरी लेस अबाउट द चाइल्ड. ओके, नाउ ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं? ट्रिगर्स जो मैंने बोला पास्ट एक्सपीरियंस से आते हैं, पर्सनल बिलीफ से आते हैं कि मैंने क्या बिलीफ सेटअप किया है, मेरा चाइल्डहुड कैसा था. और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट मदर्स, स्पेशली मदर्स के लिए बोलूंगी, स्ट्रेस और एग्जॉशन से आते हैं. बट बिफोर आई गो टू द स्ट्रेस एंड एग्जॉशन, देयर इज अ क्वेश्चन समवन आस्क्ड मी हियर कि मैम शुड वी लेट देम स्क्रिबल? नो. You know what I did? After I realized that this is my trigger point and my child was I think 1.5 years that time, मैंने सोचा यार ये मेरे को ट्रिगर कर रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मेरे को निकालना है, मेरा 1.5 साल का बच्चा नहीं निकाल सकता है. मैंने 2-3 चीजें करी. एक, वो ब्लैक बोर्ड होते हैं, मैंने जाके हर जगह वो मतलब उसके रूम में वो ब्लैक बोर्ड लगा दिया, एंड जब भी उसको स्क्रिबल करने का मन करता था मैं वो 1.5 साल के बच्चे को उस तरफ डाइवर्ट कर देती थी, यू डू इट हियर. अदर थिंग, I kept white papers ready for him all the time. उसको जब भी करने का मन करता था I would push him and वो 1.5 year के बच्चे को I would keep telling, we scribble on the paper, we scribble on the paper, we scribble on the paper, or we scribble on the book. When you keep telling the same thing again and again and again, the child learns. But it's a skill, okay? It's a patience game. Because I don't want something, I have to find a solution to it. So to answer your question, who asked me this, what did I do about it? I gave him an alternative because I don't want to get triggered for this small little thing and spoil my relationship. मतलब मैं अपने बच्चे के साथ अपना relationship खराब नहीं करना चाहती हूँ over some scratches on the wall. It is not worth it. It is not worth it. कि उसने कुछ स्क्रैच कर दिया, मैंने 2-3 बार गुस्सा कर दिया. अब ये समझ रहे बच्चा ये सोचेगा यार मेरे से इंपॉर्टेंट वॉल है कि वॉल गंदी हो गई है. और आपको लगेगा कि छोटे बच्चे को तो समझ में नहीं आता है. ऐसा नहीं है. किसी और लाइफ में आपको मैं ये समझाऊंगी दैट आवर बॉडी टेक्स एवरीथिंग. चाहे बच्चे को समझ आए नहीं आए, बट माई बॉडी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. ओके, एंड वर्ड से ज्यादा
वर्ड से ज़्यादा योर इंटेंशन मैटर्स. योर बॉडी टेक्स दैट. ओके, so coming back to, so I have answered your question what I did for my scribbling of things. Now let me come back to stress. मैंने बोला ना इसलिए लिख के आई हूँ बिकॉज मैं बात करते करते किसी और डायरेक्शन में पहुंच जाती हूँ. So हाँ, coming back to third thing, past experiences, personal beliefs, and third is stress. How many of you mothers react differently when they are all calm, they are having a nice day, इन-लॉज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड इज़ वेरी हैप्पी गो लकी, एंड बच्चे ने कुछ तोड़ भी दिया, मेरा रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है दैन ऑन अ डे जब मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, मेरे पास काम बहुत है, घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेरे पास 2 मिनट नहीं है, आई एम नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास अपने लिए टाइम भी नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू रिएक्ट डिफरेंटली अगर उस दिन घर में कुछ टूट जाए दैन टू अ डे when you are much more calmer, everything is happening your way, you know, किसी तरह से कोई टेंशन नहीं है, मेड आई हुई है, I have went for my walk, I'm much more in a calmer space. How many of you feel that you react differently on those days? Type yes. I definitely do. Type yes if you think you react differently on that day when you are much more calmer. जैसे ऑफिस में कुछ होता है तो घर आके क्या होता है, सारा का सारा वॉमिट, वी कॉल इट वॉमिट ओनली, सारा गुस्सा घर वालों पे ही निकलता है, राइट? सो सिचुएशन तो सेम हुई ना, रिएक्शन डिफरेंट हुआ कभी कभी. लाइक माई रिएक्शन स्टार्ट्स चेंजिंग विद जोरावर इन नाइट. वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन, यस. क्योंकि मुझे ये होता है भाई साहब तू 9 बजे तक सो जा, मेरे को 9 से 10 वॉक करने जाना है. ओके, सच्ची में, वेरी ऑनेस्टली. एंड आई कैन फील दैट आई एम गेटिंग इरिटेटेड इफ ही इज नॉट इन बेड बाय 8. मुझे लगता है, एंड आई कीप सीइंग द वॉच. ऑनेस्टली आई डू. एंड व्हेन आई डू दैट, यू नो, मेरे बच्चे को मेरी एंग्जाइटी फील होने लग जाती है. एंड देन आई गेट ट्रिगर्ड कि यार तू सो जा सो जा सो जा सो जा. सो समटाइम्स स्ट्रेस एंड एग्जॉशन ट्रिगर्स अस. वी डोंट वांट टू रिएक्ट इन दैट वे, बट वी आर सो स्ट्रेस्ड कि वही सिचुएशन में आई विल रिएक्ट वेरी डिफरेंटली. वही सिचुएशन में आई विल रिएक्ट वेरी डिफरेंटली. व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ. आई नीड दैट 1 hour टू माई सेल्फ, और वो नहीं मिल रहा है मुझे. ओके, सो ट्रिगर कैन ऑल्सो हैपन, और दैट वोल्केनो जो फुटना होता है कैन ऑल्सो हैपन व्हेन यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, व्हेन यू हैव 100 other things to do. कि अब ये सोएगा तो उसके बाद मेरे को ये खत्म करना है. सो दिस इज वॉट trigger is all about. Okay, now how to identify triggers. Okay, how to identify triggers is okay, I'll do one thing. You have taken out time to come on my live. What I will do is, when I post the live on my this thing na, क्या बोलते हैं, grid पे, and I then share it on my stories. Stories में I'll give you a link to a PDF which I call my buttons. ठीक है, मतलब कि it is like a tracker for you to understand what day you got angry and what was the reason behind it. I want you to track that. Okay, again I'll say, today when I share this live, okay, about tracking triggers, on stories I'll put a PDF. ओके, जस्ट गो ऑन दैट लिंक एंड डाउनलोड दैट PDF. वो स्टोरीज में होगा तो सिर्फ 24 hours के लिए होगा. ओके, एंड डाउनलोड दैट ट्रैकर एंड डू इट. सो वो ट्रैकर बहुत सिंपल है. उस ट्रैकर में सिंपली ऐसे है, जस्ट अ वीकली थिंग. ओके, कि वीक 1 में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैं कौन से दिन मैं सबसे ज़्यादा चिल्लाई और आई गॉट ट्रिगर्ड. यू जस्ट मार्क येस एंड यू राइट अ रीजन. ओके, समटाइम्स हम ना बहुत जनरलाइज कर लेते हैं कि यार अगर मैं तो अपने बच्चे पे हमेशा चिल्लाती रहती हूँ. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स रियली नॉट ट्रू. ओके, समटाइम्स हम हफ्ते में 1 बार चिल्लाते हैं, 2 बार चिल्लाते हैं, लेकिन हमें लगता है यार आई एम ऑलवेज इरिटेटेड. दैट्स सो इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू ट्रैक इट. अगर आप मंडे पे चिल्लाए अपने बच्चे पे, आई रियली सिंसियरली वांट यू टू गो एंड टेक येस एंड राइट द रीजन कि उसने ये तोड़ दिया, उसने पानी गिरा दिया, उसने खाना खाते हुए इतनी मस्ती करी, और माई मदर इन लॉ सेड समथिंग, माई बॉस सेड समथिंग, और मैं गुस्से में घर आई और आया, या फिर मैंने अपने बच्चे पे गुस्सा निकाला. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू राइट दोज रीजन्स.
उसके पीछे रीज़न ये है, जब आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? करेक्ट? अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता है, ओके, मुझे उसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगी? सो द फर्स्ट वे ऑफ हाउ यू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर इज यू आस्क योर सेल्फ, when do I feel most frustrated and angry with my child? आज से ज़्यादा लोग बोलेंगे वो मेरी बात नहीं सुनता. कितने लोग हैं जो ये बोलेंगे, जब मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है. होती है? किस किस को इरिटेशन होती है जब उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डीएम्स यही आते हैं, मैम मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता. मैं कहती हूँ मेरा भी नहीं सुनता, वेलकम टू द क्लब. आर्ग्यू करना अच्छी चीज होती है यार. आर्ग्यू करना अच्छी चीज होती है. आई लव व्हेन माय चाइल्ड आर्ग्यूज विद मी. दैट मीन्स ही हैज दैट दिमाग, दैट क्वालिटी टू आर्ग्यू. जस्ट बिकॉज मैं उसको मना नहीं पा रही हूँ doesn't mean that his quality is bad. That is changing the story which will come about how to deal with triggers. Okay? Now, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता frustrates me. Why does it frustrate you? Why does it frustrate you जब मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता? Okay, there will be many reasons. One, आप एक शेड्यूल में हो, आपको लगता है वो स्कूल से आके कपड़े चेंज कर ले, उसको खाना खाना, उसको ट्यूशन जाना, उसके बाद ये करना है. सो बेसिकली आपको ये लग रहा है कि जब मैं उसको बोल रही हूँ कि कपड़े चेंज कर ले, वो कपड़े नहीं चेंज कर रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है. फ्रस्ट्रेशन मुझे इस चीज की है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, और मैं फ्यूचर में कहीं पहुंच गई उसको लेके. राइट? जब मैं फ्यूचर में लेके पहुंच गई उस चीज को, आई गेट ट्रिगर्ड फॉर टुडे, और उस चीज में आई स्टार्ट शाउटिंग ऑन माई चाइल्ड. राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज, व्हेन डू आई फील मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड and angry with my child? And second most important question that I want you to honestly ask yourself and write it down is, what thoughts come up when your child does dash? मतलब वो चीज जिस चीज से आप ट्रिगर हो रहे हो. जैसे मैंने आपसे मॉल वाला एग्जाम्पल पूछा, राइट? बच्चा रो रहा है, दैट्स एन एक्शन, सो इट फ्रस्ट्रेट्स मी, इट इरिटेट्स मी. बट व्हाट थॉट्स, ऐसा क्या थॉट है आपके दिमाग में जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ है? जब आप वो थॉट को पकड़ लेंगे ना, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. ओके? वो थॉट पकड़ना जरूरी है. जैसे मैंने मॉल वाले इंसिडेंट में बोला, और काफी लोगों ने बहुत ओपनली बोला कि मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट आई एम, लोग देख रहे हैं. दैट ट्रिगर्स मी. सो दैट्स बीइंग एन ऑनेस्ट ट्रूथ कि मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि लोग क्या सोचेंगे. राइट? यही हुई ना बात. नाउ थर्ड क्वेश्चन यू गोना आस्क योरसेल्फ इज, जो मैं रिएक्शन देती हूँ उस ट्रिगर में, इज इट अबाउट मी और इज इट अबाउट माई चाइल्ड? मतलब अगेन मॉल वाले इंसिडेंट में बच्चा रो रहा है, बट मेरा रिएक्शन इज मोर अबाउट मी. क्यों? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज दिस वॉज नेवर एक्सेप्टेड फॉर मी. जैसे जब बच्चे रोते हैं, ओके, जब बच्चे घर में रोते हैं, आधे से ज्यादा स्पेशली ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंट्स ये बोलते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इरिटेट मत करो, चुप हो जाओ. बोलते हैं ना, सुना होगा बहुत बार जब बच्चे रोते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बचपन में दे हैव हर्ड द सेम सेंटेंसेस फ्रॉम द पेरेंट्स. Irritate, you just irritating me. I cannot tolerate a child crying. I think my mother is on this live, but I can be very honest. I remember my mom's one sentence very clearly. She would say, "Don't cry, it irritates me." तुम मुंह से बोलो क्या बोलना है. I really very clearly remember that. Her always telling me this. कि don't cry. क्योंकि and I don't blame her. She did the best. She is the best. I always say my mom is one of the best parents, you know. They did their mistakes. I'm also going to do my mistakes. Nobody is perfect here. But she also got triggered with crying. Did I get triggered with crying? Yes, initially I did. जब तक मैंने अपने आप पे काम करना शुरू नहीं किया, I also did.
बट देन आई रियलाइज इट इज माई पेरेंटिंग, इट्स हाउ माई, मेरे को बचपन में बोला गया क्राइंग इज नॉट गुड, यू कैन नॉट क्राई, यू कैन नॉट क्राई, यू नो. एंड when you do not accept दूसरे का, मैंने लास्ट लाइव में भी बोला था, आप रो रहे हो, आपका फ्रेंड आके आपको बोल दे या रोना बंद कर, क्या आप चुप हो सकते हो 1 मिनट में? यू विल फील ashamed, right? I am honestly telling you, if you are crying and your friend comes and say यार रो मत यार, प्लीज रो मत, you are irritating me, you will feel the other person is not accepting me only यार, मतलब there is a fault in me, my crying makes the other person upset, am I being accepted here or not, right? Same happens with the child. just because वो छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो फीलिंग्स ह्यूमन, उस ह्यूमन में वो फीलिंग नहीं है. ओके छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनमें इमोशनल रेगुलेशन होता ही नहीं है, हमें सिखाना है उनको. सो कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, जब आप कोई ट्रिगर में रिएक्शन देते हैं, आप ये देखिए कि वो रिएक्शन बच्चे के लिए है या ऑनेस्टली आपके लिए. इज इट ऑल अबाउट मी? लाइक scribbling on walls is my problem, okay? Getting on time at place as much as I can is my problem. Following a set routine is my problem. Child का problem नहीं है वो, child is तो मस्ती भैया, वो तो अभी इस दुनिया में आया ही है. They have to make their beliefs, right? I once heard a mother, the child just said, I give up. उसने ऐसे ही बोला, I give up mama. And the mother just went from like 0 to 100 in no second. Do you think a child saying I give up is such a big thing? I give up mama. तो वो उसको इतना ट्रिगर क्यों कर गया? मे बी उसका खुद का पर्सनल बिलीफ ये है दैट यू डोंट गिव अप. मे बी उसको बचपन से उसके पेरेंट्स ने बोलते रहा यू ऑलवेज हैव टू ट्राई, बी योर बेस्ट, यू कैन नॉट गिव अप. उसको ये लगता है, मे बी, आई एम जस्ट सेइंग मे बी, आई डोंट नो दैट पर्सन, मे बी उसका खुद का बिलीफ ये है दैट गिविंग अप मीन्स दैट यू आर वीक. सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, व्हिच आई टेल यू व्हाट शी कुड हैव सेड, she just blasted off and she said, you never ever say like that, we do not give up in this family ever. Now a child is sitting there and looking. Do you think a child is like, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? Now this is reacting. How will I respond in this case? If it doesn't trigger me, I can respond to a child, you're finding it difficult, do you want to find another way of doing it? आप दूसरी तरीके से करना चाहते हो? या फिर if I have to respond or if my mind is working properly, I can respond by saying, अच्छा ये अभी डिफिकल्ट लग रहा है आपको, हाँ समटाइम्स वी फील लाइक गिविंग अप, बट लेट्स फाइंड अनदर वे ऑफ डूइंग इट. So I'm not letting my child give up also, but I'm not kind of shouting on my child, like I'm not reacting. You understood the two difference on the same sentence? क्योंकि मैं वो एक सेंटेंस से इतनी ट्रिगर हो गई अबाउट गिविंग अप, द मदर जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग सेइंग इन दिस हाउस नोबडी गिव्स अप, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड ब्ला 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 ब्ला. Am I helping a child by saying that? Please tell me. Am I helping my child by saying that? By shouting on my child, am I helping my child? I'm not helping my child. Instead, if I am little calmer and I go to my child and say, बेटा हाँ डिफिकल्ट है, लग रहा है डिफिकल्ट तो लग रहा है, चल लेट्स फाइंड अनदर वे ऑफ डूइंग इट, डू यू नीड हेल्प? I'm not letting my child give up still, but I am using my prefrontal cortex, my brain, my logical brain, and giving a solution to my child instead of making it worst. This is a difference between reacting and responding. But I can only respond when I know my triggers. I can only respond अगर मैं अपने आप पे काम करना चाहती हूँ, then only I will respond. अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरा बंदा ही सारी चीजें कर ले, यार वो बच्चा है वो ही चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा. ट्रिगर हमें चेंज होना है, हमें उसके अराउंड सोल्यूशन ढूंढना है. डू आई एज अ पेरेंट गेट ट्रिगर? ऑफ कोर्स आई गेट ट्रिगर. टिल डेट आई गेट ट्रिगर्ड.
but because I am much more aware about it, I can manage it better. प्रॉब्लम विथ पेरेंटिंग पता है क्या होता है, जब बच्चा रो रहा होता है ना, मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी है बिफोर आई गो टू हाउ टू डील विद इट, एज अ मदर मैं जानना चाहती हूँ आपको भी ऐसा फील होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसे फील होता है कि एज अ मदर वेन थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, मतलब मेरा बच्चा कुछ ऐसे कर रहा है और मेरे लाइक कंट्रोल में ही नहीं हो रहा, मतलब इन द सेंस कि वो रोई जा रहा है या फिर वो कोई ऐसी चीज कर रहा है एंड आई एम लाइक आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट, यार किसी ने मुझे बताया नहीं सिचुएशन में करना क्या है, आई गेट मोर इरिटेटेड अबाउट इट. ऐसा होता है क्योंकि मुझे लगता है यार किसी ने पेरेंटिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं, इसका ये आंसर है, दैट वुड हैव बीन सो सिंपल. क्योंकि ये रिलेशनशिप है, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी मदर इज डिफरेंट, एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट. जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि इसका आंसर क्या है, किसी ने बताया नहीं है, एंड दैट्स व्हेन आई गेट मोर इरिटेटेड, क्योंकि मुझे एज अ ह्यूमन उसका आंसर नहीं पता है. और जब मुझे एज अ ह्यूमन उसका आंसर नहीं पता होता ना, मुझे होता है द बेस्ट थिंग इज जस्ट टू shove it off and be like छोड़ो यार, like let me just react. Thank you so much for agreeing, because कभी कभी मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगता था शायद मैं ही हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि when I feel that I don't have it in my control, और when I feel कि इसका आंसर क्या होगा, यार मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है स्कूल में, या मेरे बच्चे को ये फीलिंग हो रही है, लेकिन मैं इसका आंसर कहाँ ढूंढूं इसका आंसर. सो आई वुड ट्राई टू शव इट ऑफ, एंड आई फील दैट इज वेयर द ट्रिगर, मैं इरिटेट होकर रिएक्ट जल्दी कर देती थी. एंड इट इज सो नाइस टू सी दैट इवन यू एज mothers feel that, so that I don't feel alone about it. But ये fact है, मुझे ऐसा लगता है. And then I tell myself one thing. From last 1 year I have been telling myself, and it has helped me. Try next time if it helps you also. कि मैंने अपने आप को एक चीज़ बोलती हूँ कि दिव्या, you're learning, he is learning. You just do your best. मेरे बच्चे को ट्रॉमा होगा नहीं होगा, वो क्या बिलीफ सिस्टम बनाएगा नहीं बनाएगा, वो मुझसे प्यार करेगा नहीं करेगा 10 साल बाद 20 साल बाद, मैंने नहीं देखा है, मेरे को नहीं पता है. मैं अपना बेस्ट करूंगी विद द नॉलेज आई हैव. ओके, काफी लोग अपने पेरेंट्स को लेके जज करते रहते कि माई पेरेंट्स डिड दिस व्हेन आई वाज अ किड, माई पेरेंट्स डिड दैट when I was a kid, उसकी वजह से मुझे ट्रॉमा हो गया है, उसकी वजह से मुझे ये हो गया है. I never liked it. Okay, my sincere request to you is this: your parents didn't know better, मतलब उनको पता ही नहीं था. Today you are sitting here talking to me or listening to me because you want to do better, right? अगर ये Instagram नहीं होता, Google नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको एडवाइस देने वाला कौन होता? आपके आसपास वाले ही होते, राइट? वो गली मोहल्ले वाले ही होते, आपकी दुनिया वही होती. That is what our parents' world were, and they did जो उनको उस टाइम पे सही लगा. Okay, so if you ever feel कि मेरी मदर ने ऐसे किया, मेरे फादर ने ऐसे किया, you know, they shouldn't have done it, and I don't like it, I don't want to do this with my kid, please remember one thing: your parents did the best with the knowledge they had. जितना उनको पता था उन्होंने अपना बेस्ट किया. आपको भी जितना नॉलेज पता है आप उसमें ही बेस्ट करोगे. ओके, इट्स ऑल अबाउट हम क्या करना चाहते हैं, क्या अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज है, क्या सीखना चाहते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द मेन थिंग. ओके, हाउ टू डील विद दिस ट्रिगर्स. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज ट्रिगर्स. Second step is identifying your triggers. So don't get into how to deal with parenting triggers without identifying your triggers. Again, I'll say in my stories, there will be a PDF after, like by tonight or by tomorrow morning, there will be a PDF, download it. Okay, it's a trigger tracker that I have made that I generally give in my workshops. But if you guys are spending 1 hour with me, I'm more than happy to share it. There's nothing to hold on to. मुझे लगता है लाइफ में होल्ड ऑन करके क्या करना है यार, दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड बाय एवरीथिंग. सो डू दैट ट्रैकर. आप अगर एक हफ्ता भी करोगे ना, एक हफ्ता भी करोगे, आपको अपने ट्रिगर्स का मेन वो पता चल जाएगा कि मैं इस चीज से इरिटेट होती हूँ या होता हूँ. एंड देन इफ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, मतलब अगर आप चाहते हो कि हाँ यू बिकम a more calmer parent, your connection with your child is more important, then this is what you need to do. First, you need to start identifying what happens in your body when you get triggered. Okay, as per science and as per research,
मेरे कोई भी रिएक्शन से पहले मेरी बॉडी में वो रिएक्शन आता है. जैसे कि मगर मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है, समथिंग विल हैपन इन माई बॉडी फर्स्ट, लाइक माई हार्ट बीट विल गो अप. आई विल स्टार्ट फीलिंग समथिंग इन माई चेस्ट. हैंड्स स्वेटी हो जाते हैं. ये किसी ने लिखा है योर नेम चाइल्ड. इरिटेटेड चाइल्ड को कैसे ठीक करें? इरिटेटेड चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड ही इरिटेट आप हो रहे हो. दिस इज व्हाट द एंटायर सेक्शन इज ऑल अबाउट. ओके, so let's stop blaming our children for our irritation and our triggers. Okay, आप behavior और emotions को अलग रखिए please. That's how a wonderful parenting can be done. Anyways, coming back to body. आपको गुस्सा आने से पहले your body will give you some indications for sure. Okay, next time आप irritate होते हैं ना, and when you follow that tracker, next time आप irritate होते हो, write what happened in your body. Did you feel a pressure here? Did your arms or this क्या बोलते हैं, palms got sweaty? In my case, I know. For my case, it starts from here and here and here and here, and I start feeling like मेरा यहाँ पे literally वो होने लग जाता है कि अगर ये अब चुप नहीं हुआ ना, I am going to blast. You know? So it took me time to realize कि मेरा body कैसे react करता है before I get irritated about it completely. Okay, point number 2 to do is, I know easier said than done, is to pause and breathe. If you want to teach your child to manage anger, कि वो गुस्सा अपना गुस्सा मैनेज करना सीखे, अपना बिहेवियर मैनेज करना सीखे, तो पेरेंट्स पहले आप सीखिए. You have to model it to them. So you need to pause for a minute. For me, when I get triggered and everything is like here, especially रात को it's 9 and he has not slept and it's in my head कि मेरा ये काम रह गया, I just pause. Literally, I am like, let's take a deep breath. ये मेरे हाथ में नहीं है. This is something I cannot control. When I cannot control something, I have to give in. So those are my mantras. You figure out your mantra. माई मंत्रा इज वेरी सिंपल. जो चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती उस बारे में मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, उस पर मैं इरिटेट नहीं होती हूँ. यू फिगर आउट योर मंत्रा एंड से दैट टू यू व्हेन यू आर गेटिंग इरिटेटेड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेंबर, स्पेशली इफ योर चाइल्ड इज क्राइंग, और स्पेशली ये मॉल वाला सीन हो रहा है, और इफ योर चाइल्ड इज हैविंग अ टैंट्रम, एज अ पेरेंट माई रिक्वेस्ट टू यू इज दिस, रिमाइंड योर सेल्फ दैट ये जो बिहेवियर है ना बच्चे का, इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट माई चाइल्ड. ये इमोशन मेरे बच्चे का है. हाँ, वो बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल बट दैट इमोशन इज एक्सेप्टेबल. अगर आपका बच्चा बाहर जाके बच्चों को मार रहा है या हिट कर रहा है, कैन यू इमेजिन कि मे बी ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड? कैन यू इमेजिन कि मे बी उसने वो कहीं देखा है? हिटिंग इज अ बिहेवियर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. येस, बट वट इज द इमोशन बिहाइंड दैट बिहेवियर, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है जानना. Okay, and I know ये सब करना ना, it feels a lot of work as a parent because it's easier to just go and shout on your child. It's very easy to go and scold your child. It is very easy कि जाके बच्चे को 2 थप्पड़ मार दो. It is very easy कि बच्चे को बोल दो ये नहीं होगा. Very very easy. As a parent, it's the easiest thing for me that I rule over my child. Very easy. Okay, and it's so difficult to go through these phases and work on ourselves. But the choice is yours as a parent. Do you want a connection with your child? Do you want your child to be emotionally regulated? Do you want your child to be prepared for the world tomorrow? कि या फिर फ्यूचर में जाके वो ट्रॉमा में वो बाद में थेरेपी ले रहा होगा इसके लेके. Anyways, so coming to the third point. So first is you identify what happens in your body. Second, you identify the root cause. Third, you pause and you breathe. थर्ड इज यू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, जो मैंने आपको पहले बोला है कि ये ट्रिगर के पीछे क्या रीजन है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जिस दिन आप ये समझ लोगे ना एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग सोल्यूशंस फॉर इट, यू विल बिकम मच मोर बेटर एट मैनेजिंग योर चाइल्ड. अगर मुझे ये चीज़ इरिटेट करती है, इसका क्या आंसर है? अगर मुझे ये चीज़ इरिटेट करती है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, रूट कॉज. सो माई चाइल्ड गोज फॉर स्विमिंग क्लास. ओके, नाउ फर्स्ट 2 क्लासेस में क्या हो रहा था, क्लास खत्म हो गई, आई मीन टेलिंग हिम अगेन एंड अगेन, जोरावर इट्स टाइम टू गेट आउट.
जोरावर इट्स टाइम टू गेट आउट। और वो इरिटेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि वो क्लास से निकलेगा, मैं घर आऊंगी, आई विल गिव हिम फूड एंड देन आई कैन सिट एंड डू माई वर्क। सो यू नो, एज अ पेरेंट यू थिंक लाइक 10 times अहेड कि यार इसके बाद ये मुझे काम भी खत्म करने हैं, एंड दैट्स एन ऑनेस्ट ट्रूथ। तो मेरी इरिटेशन बढ़ रही थी बिकॉज 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, एंड आई एज अ मदर डोंट लाइक टू से थिंग्स 10 times। कहाँ से आई है आदत? अगेन मेरे मम्मी भी ऐसी है, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तो मैं भी अब ऐसी होगी, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। सो वो मुझे इरिटेट करती है। सी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू हियर, ओके। वो मुझे इरिटेट करती है, एंड मैं यार उसको बोली जा रही हूँ, बोली यार जोरावर पूल से निकलो, पूल से निकलो, जाना है जाना है। मेरे दिमाग में बातें चल रही है कि यार ये पूल से निकलेगा तो मुझे नहलाना है, खाना खिलाना है, देन ओनली आई कैन सिट एंड डू माई वर्क। ओके, मेरा काम डिले हो रहा है, मेरा काम डिले हो रहा है। सो वन थिंग वॉज कि आई कुड हैव शाउटेड ऑन हिम देयर। So what I do is I just went and I just stood like this. Now Zoravar and me is at a stage when he knows कि mama is looking at me like this, that means something is wrong, कि मेरे को अच्छा नहीं लगा what he is doing. But that takes time. Let me be very honest, okay? He came out. Next day was Sunday. Again उसका वो था। मैंने उसको सैटरडे शाम को एक चीज़ बोल दी। मैंने कहा बेटा देखो, आपकी क्लास इतने से इतने बजे तक है, आपको उसके बाद कितने मिनट्स और चाहिए टू प्ले इन द पूल? ही सेड 10 minutes. आई सेड परफेक्ट, आई विल गिव यू 10 minutes. बट मम्मा ने एक बार बोलना है कि बेटा कम आउट ऑफ द पूल, एंड दैट मीन्स इट इज टाइम टू कम आउट फ्रॉम द पूल, बिकॉज आई डोंट लाइक टू से थिंग्स 10 times, बिकॉज मैं इरिटेट होती हूँ। मैंने उसके ऊपर नहीं डाला, मैंने बोला मैं इरिटेट होती हूँ, आई विल शाउट ऑन यू, आई विल नॉट लाइक इट, यू विल नॉट लाइक इट माई जान। ही सेड ओके. And then he said, but how will I know 10 minutes is over? So I told him on the clock when the bigger one reaches here. So वो सब करना पड़ता है बच्चे के साथ, ठीक है? He said okay. Then I asked him another question, and if you have been following my life for a long time, I believe in consequences. So I told him, so if you don't come out from the pool, what do you think will be the consequence for it? Okay. He said, I don't know. I said, you think about it and tell me. So then both of us agreed to one consequence, जिसमें नुकसान मेरा ही था, but I was like ठीक है, as I said, for me a promise is a promise, you keep your word. It is very important for me and very high in my value system कि if I've given a word it has to be kept, okay? And I said ठीक है. Next time went to the pool, मुझे सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है कि जोरावर when the big hand is on this, you're coming out, okay, that's it. He knows it. So इरिटेट मैं हो रही थी कि मुझे उसे 10 बार बोलना पड़ रहा था। इरिटेट ट्रिगर मेरा था कि मुझे नहीं पसंद है कि मैं सबके सामने 10 बार बोलूँ उसको। इरिटेशन मुझे हो रही थी कि मैं चिल्लाना नहीं चाहती उसके ऊपर। सोल्यूशन किसको ढूंढना है? 5 साल के बच्चा सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है। आई हैव टू टेक आउट द सोल्यूशन एज एन अडल्ट, ओके? वाई? बिकॉज फॉर मी शाउटिंग ऑन हिम सबके सामने इज नॉट वर्थ। मेरा कनेक्शन, माई लव फॉर हिम इज मच मोर देन दैट। हमें लगता है बच्चे को फर्क नहीं पड़ता अगर मैं चिल्ला दूं, बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है। आपको फर्क नहीं पड़ेगा 10 लोग के सामने आपके कोई आपके सामने चिल्ला दे? आपको, बच्चों को फर्क पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ता है। हमें लगता है इनको फर्क नहीं पड़ता, बट वो सारी चीजें उनको फर्क पड़ती है। सो सोल्यूशन किसको निकालना है? हमें। एज अ पेरेंट इफ यू ऑलवेज गो टूवर्ड्स कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके में मैं क्या कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड अबाउट इट, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, दैट इज व्हाट यू वांट टू टीच योर चाइल्ड आल्सो इन फ्यूचर। कि चीजों के ऊपर रोने से अच्छा ये फाइंड उसका सोल्यूशन क्या है, ओके? सो आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ इट, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज चेंज द स्टोरी बिहाइंड इट। जो कोई मुझे कह रहा था ना मेरा बच्चा आर्ग्यू बहुत करता है, सो ऑन दैट आई विल से दिस थिंग, इफ अ ह्यूमन बीइंग हु कैन आर्ग्यू, अ ह्यूमन बीइंग who knows what they want, a human जिसको ये पता है कि मुझे ये चीज ऐसे चाहिए, वो किसी और को कन्विंस भी कर सकता है, will that person be a successful person or not? Will he get his way around in the world or not? Is it a good trait to convince another person or not? Let me know. Do you think it's a good trait if दूसरा बंदा आर्ग्यू कर सकता है अपना पॉइंट or not? What do you think? I don't know if that person is still there or not, जिसने बोला था कि मेरा बच्चा मेरे से बहुत आर्ग्यू करता है इसलिए मैं इरिटेट होती हूँ. Yes, it's a good trait to argue. Why not?
Whoever said no, I'm not sure what your reason is. Please type it. I really want to know why not. I would like my child. I love when Zorawar argues. It irritates me because sometimes मेरे पास आंसर नहीं होते हैं. But you know why it irritates me? Because मेरे को लगता है I'm losing यार. So again, it is about me, not about him. I want that in his personality, that he should argue, he should use his brain, he should know. But that doesn't mean that boundary is not going to be, that boundary is there. नहीं तो नहीं है. But you are most welcome to argue. And I love that trait in him. So change your story around that particular thing. About that particular, अगर वो change कर सकते हो story, change it. Some people say my child asks a lot of questions. It irritates me. Change that story to the fact that my child is curious. My child is so curious about the world. Yes, it irritates me because it is taking time away from me. That is my trigger. But change your story. My child is curious. And being curious, do you think it's a good thing or a bad thing? When we change the story behind anything, leave about triggers. But life में वैसे मैं आपको बता देती हूँ. When you change the story about it, no, about a situation, about a particular thing, about a particular incident, the way you look at that thing or that incident or that situation changes completely. On a personal note, let me tell you, like बहुत बार होता है, if our friends don't call up, we say यार उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो मुझे कॉल भी नहीं कर रही है, you know, and we started making stories in our head, है ना. काफ़ी लोग करते हैं ऐसे. We started making stories in our head. She doesn't care for me. I messaged her. She didn't even reply back. I'm not going to message her ever again. And you know, what does she think of herself? Can't you change your story to this, that if my friend has not replied to my message, maybe my friend is going through something, and when she is ready, she will reply back to me, instead of making it all about me. When you change the story, you know what happens, friends? This is very personal to me. Huh? When you change the story about something that is happening, you become more empathetic. Empathetic हिंदी में मतलब कंसिडरेट, मतलब मुझे हिंदी में इसका मतलब वो नहीं पता, एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, बट आप वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से बात समझने की कोशिश करोगे. कितनी बार होता है दैट योर फ्रेंड हैज नॉट कॉल्ड यू अप, कितनी बार होता है दैट यू हैव नॉट, बात ही नहीं हुई है, आफ्टर 1 year you come to know, oh my god, my friend was going through so much trouble, oh god, उसका तो ऐसा हो गया, एंड मैं ये सोच रही थी उसके बारे में, राइट. बट वो 1 साल आप कलजे अच्छे से, एंड यू आपने बोल दिया वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है. यू मेड योर ओन ओपिनियंस. इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द स्टोरीज इवन विद द किड्स. जो ट्रेट, जैसे काफी जिनके स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चे किन किन के, जो हर चीज में आर्ग्यू करते हैं, नो आई डोंट वांट दिस, नो आई डोंट लाइक दिस, नो मम्मा आई वांट इट माय वे, ये मुझे स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट ही चाहिए, वो मैं कट ही नहीं करूंगा, कहे जो मर्जी कर लो, है ना. बहुत बच्चे ऐसे, मेरा तो ऐसा ही है सच्ची में. दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू दिस एंटायर पेरेंटिंग जर्नी, बिकॉज बहुत मुश्किल हो रहा था हैंडल करने के लिए, बिकॉज बहुत पावर स्ट्रगल्स हो रही थी मेरे बेटे के साथ. बट डिड आई वॉन्ट टू चेंज हिज इनएट nature of being very clear of what he wants? No. Why? Being clear of what you want is amazing. You know, being a leader, being exactly what you want to do is so good. किसी और की बातों में नहीं आना is so good. You're so clear. But at the same time, I want him to learn to be listening to the other person's opinion. ठीक है, listen to what they are saying. That's what I am trying to cultivate it. Listen, bachcha. It is listen, then you do what you want to do. Even with friends. So don't try to snub your child's, जिसे कहते हैं ना, personality, क्योंकि it is too strong for you as a child. Sorry, as a person. हम लोग snub इसलिए करते हैं because it's difficult for us to handle strong-willed children. It is so difficult to always be like, यार एक बार तो मेरी बात सुन ले, please, you know, please. But again, change your story. This personality is good for my child. At least my child is clear what my child wants. At least my child knows what my child wants. Nobody can take advantage of my child. Okay, my child has a mind of his own. My child is curious. So instead of taking things in a negative way, change your story around that particular thing and then deal with it.
I'm not saying give in to your child. No, I don't give in to my child. No. But I cherish that personality of my child. I cherish that personality that he is like this. My child never used to share anything till the age of 3. And now at the age of 5, I am, मतलब मेरे को कभी कभी शौक लग जाता है कि he is so willing to share things which